दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पार्ट ए वी आर गोइंग टू स्टडी alcohols and phenols, and part B we will study the ethers. Now when we are otherwise talking of alcohols and ethers, तो हम बोलते हैं कि जो alcohols and ethers हैं they are functional isomers of each other. Alcohols and ethers are functional isomers of each other. Functional isomers का मतलब क्या होता है कि they have the same molecular formula but different functional group. ठीक है? So अगर molecular formula same है पर functional group different है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी they are going to be different. ठीक है? But different molecular formula same but different functional formula means that they are going, both of them they are going to have different properties. That is why we study them also separately. Their methods of preparation are also different and their chemical properties are also different, and there is a vast difference in their melting and boiling points also. Okay, so let's go on to alcohols today. Alcohols जब हम पढ़ते हैं तो again classification अगर हम करें alcohols की, अच्छा सिर्फ IUPAC थोड़ा सा करेंगे और थोड़ा सा हम classification करेंगे, ठीक है? Classification जब करते हैं हम just like what we had done in the previous chapter, इसको भी हम उसी तरह से classify करेंगे. They may be monohydric. OH group over here, that is known as hydric group. So they may be monohydric, having one OH group. ठीक है? जैसे normal alcohols होते हैं CH3OH, C2H5OH, और how do we name them? Methanol, ethanol, propanol and so on. ठीक है? फिर सेकंड हमारे पास, और IUPAC नेम्स का कैसे देते हैं? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड सो ऑन. फिर हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं which contain two OH groups. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2OH and CH2OH, राइट? इसको कॉमन नेम इसका जो है दैट इज इथाइलीन ग्लाइकोल. कॉमन नेम इज इथाइलीन ग्लाइकोल. IUPAC नेम क्या होगा? इथेन 1,2-diol. इथेन 1,2-diol. ठीक है? फिर उसके बाद पॉलीहाइड्रिक. Polyhydric means more than two. More than two OH groups. For example, ठीक है? This is glycerol. IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन 1,2,3-triol. ठीक है? यहाँ पे यहाँ CH2 आएगा.
Propane 1 2 3 triol. क्लियर? ओके, फिर उसके बाद जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन. ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, कौन सा कार्बन लगता है इसमें? अल्फा. If alpha carbon is sp3 hybridized, so in that case we will have alcohols. ठीक है? An example which we can take is CH3 CH2OH. Second, benzyl alcohol. बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग के साथ CH2OH अटैच्ड है, which means अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये अल्फा कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन एटम इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड. थर्ड, अलाइल अल्कोहल्स. Allyl alcohols, really what do we have? CH2 double bond CH, CH2OH. So here also alpha carbon atom is sp3 hybridized, whereas beta carbon atom जो है वो sp2 hybridized है. ठीक है? सेकेंड आ गया sp2 hybridization. sp2 hybridization में now the alpha carbon atom जो है that is going to be sp2 hybridized. Okay, first इसमें आ जाता है phenol. Phenol has a OH group attached to the benzene ring. ठीक है? और सेकेंड आ जाएगा vinyl alcohol. Vinyl alcohol में we will get CH3 CH यहाँ पे बताता उसको CH. This is the alpha carbon atom. ठीक है? So this is vinyl alcohol. So sp3 and sp2 hybridized. Now we need to know certain common names जो कि बार बार यूज होंगे. As far as alkyl alcohols are concerned, so alcohols के names हमें पता है कि अगर मिथाइल ग्रुप के साथ है तो कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल और अदरवाइज मीथेनॉल, है ना. और अगर इथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. प्रॉब्लम हमें कब आती है? जब हमारे पास फिनोल्स होते हैं. सो फिनोल्स के कॉमन नेम्स कुछ जो है वो आने हमें जरूरी है. द सिंपलेस्ट मेंबर ओवर हियर इज OH. दिस इज नोन एज phenol. If OH is not attached directly but to a CH2 group, then this is known as benzyl alcohol. ठीक है? अगर हमारे पास दो OH ग्रुप प्रेजेंट है at the adjacent position, ortho position पे, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? This is known as catchol. और IUPAC नेम इसका क्या होगा? 1,2 बेंजीन डाइओल.
ठीक है। अगर यही OH ग्रुप जो है दैट इज प्रेजेंट एट द मेटा पोजिशन, then this is known as resorcinol. और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,3, थर्ड पोजीशन पे बेंजीन 1,3 डायोल। ठीक है। अब अगर ये एक OH ऊपर और एक OH नीचे, then this is known as quinol और IUPAC नेम 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या बेंजीन 1,4 डाइओल, बेंजीन 1,4 डाइओल। ठीक है। अब अगर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, then this is known as ऑर्थोक्रिसोल और IUPAC नेम इसका क्या होगा? 2-हाइड्रोक्सीटोलीन, 2-हाइड्रोक्सीटोलीन। OH को अगर हम शिफ्ट कर दें at the meta position, then this is known as metacresol। सॉरी, चलो ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज CH3 ऊपर लाके OH नीचे भी लिख सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। अगर उस तरह से लिखना है उसके साथ कंपैरिजन के लिए तो वैसे लिख लो, बोथ आर करेक्ट। ओके। और अगर ये पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है CH3 and OH, then this is known as paracresol, right? अब जब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन वालों को वो करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो हमें पता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम कौन सा होता है ना। सो लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड दैट primary CH3 CH2OH, this is primary alcohol, secondary this is secondary alcohol, and tertiary this is known as tertiary alcohol। और इसे हम क्या बुलाते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, ये भी हम इसे बुला सकते हैं। ठीक है। नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है ना, वी कैन डू द नॉमेनक्लेचर। फिनोल्स के कॉमन नेम्स मैंने कुछ बता दिए आपको, मेटाक्रेसोल और वो सब, राइट। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है that is trinitrophenol, trinitrophenol, this is known as picric acid। तो ये जब हम चैप्टर करेंगे तो सब नेम्स आपको आने चाहिए बिकॉज ये यूज होंगे, राइट। पिक्रिक एसिड। फिर एक और है OH and CHO group, this is known as salicylic। ये सारे कॉमन नेम्स हैं इसके।
और IUPAC नेम इसका क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बिकॉज CHO ग्रुप जो है दैट इज द मेन ग्रुप. सो नंबर 1 पोजीशन इसी को देंगे हम, देन 2, सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. अगर यहां पे हम CHO को COOH ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड. और IUPAC की नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, तो ये कुछ जो है चीजें आपने याद रखनी है. द नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स. आइसोमेरिज्म क्या होता है, which have the same molecular formula but different structural formula. जो एल्काइल हैलाइड्स वालों ने किया था रिप्रेजेंट, वो ये भी करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म, वी ऑलरेडी नो कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, सो अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2OH है, दिस इज प्रोपेनोल. OH की अगर पोजीशन चेंज हो जाती है, ओके. सेकेंड इज chain isomerism, where chain is going to be different. For example, this is butanol. So chain isomer इसका क्या होगा, 2-methyl propanol. 2-methyl propanol. Number 3, it also shows functional isomerism. Functional isomerism का मतलब कि functional groups are going to be different. जैसे हमने चैप्टर शुरू ही उससे किया था कि alcohols and ethers are functional isomers of each other. For example, if we are taking propanol, this is propanol, तो इसका फंक्शनल CH3O CH2 CH3, ये इसका आइसोमर बनेगा. इथाइल मिथाइल ईथर. ठीक है, इसकी नॉमेनक्लेचर हम बाद में ही करेंगे. ओके, सिंपलर अगर लेना चाहते हो CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल एंड CH3O CH3 dimethyl ether. Dimethyl ether. Then certain alcohols which have a chiral carbon atom will also show optical isomerism. पर उसके लिए chiral carbon atom होना जरूरी है. जैसे CH3 CH OH CH2 CH3, this is a chiral carbon atom. Butane to ol, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. ठीक है, तो आज हम यही तक करेंगे. टुमारो